I would like to thank him to invite me over here. Generally I talk very less. But as this is a talk, I'm supposed to talk. So I would narrate few incidents from my life because abhi at this point of time, abhi is stage pe life pe, I feel I have to achieve that importance जिसके बारे में I can address the huge gathering. So before talking about myself, I was going through the topic minds wide open. This is very intense topic if we talk about it. क्योंकि जब यूपीएससी की हम तैयारी करते हैं, let me introduce myself. I am basically belong to लुधियाना, पंजाब, and I am a dentist. और हम दोनों भाई, we are two real brothers. I am a dentist. He is a medico. He is MBBS. उसके बाद में under the able guidance of my father, my parents, I got into the police services. और छोटे भाई को he got into IAS. He is also posted in UP. So there is a saying. I was just searching about the topic minds wide open. So I was sitting with somebody very elder. तो उनके एक दिन मैं स्पीच सुन रहा था तो मैं उनसे कहा कि सर ये टॉपिक इन्होंने दिया, दिस लुक्स वेरी इंटेंस. दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं आई जनरली स्पीक ऑन द स्पॉट, आई डोंट सर्च. और ये टॉपिक ऐसा था कि आई ट्राई टू सर्च. तो एक कोट मेरे सामने आई फ्रॉम आवर वेदास. दैट कोट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर. आनो भद्रा कर्तव्यो यंतु विश्वतः. इट मीन्स अच्छे विचार कहीं से भी आए उनको आने देना चाहिए. That can be from your colleague, that can be from your subordinate, that can be from your senior, that can be from anybody. तो ये एक बहुत बेसिक फिलॉसफी होनी चाहिए लाइफ की कि अगर अच्छे विचार कहीं से आ रहे हैं तो उनको आने देना चाहिए. एंड जो ओपननेस है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं जानते. There is a person, a writer, poet, known as शिव कुमार बटालवी. आप जाएं, आप देखेंगे. There is a character in our history, our mythology. Her name is Luna. This is the story of Puran Bhagat. That the lady Luna has been picturized as a villain in all the stories you will find. But that person Shiv Kumar Batalvi, he mentioned her agony and he portrayed the actual picture, and that is the only one script where you will find her in a positive role. And he was the youngest one to win Sahitya Academy Award. So this is how the thinking makes the things different. Now, there is only one comparison I would make. शायद बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि एक आचार्य के बेटे को जब दूध नहीं मिला, जब उसने दूध मांगा अपनी माँ से और उसकी माँ ने उसको आटे में पानी घोल करके पिला दिया, that laid the foundation of महाभारत. जब एक आचार्य के बेटे को दूध नहीं मिला, उस कारण से महाभारत हुई. और जब एक इसी तरह से एबल स्टूडेंट को उसके टीचर ने उसके मेस की फीस जमा की तो आत्माराम जैसे केमिस्ट्री के साइंटिस्ट पैदा हुए. तो दिस इज हाउ द थिंग्स गेट डिफरेंट. नाउ आई वुड लाइक टू कम ऑन माई सेल्फ. आई हैड अ गुड एकेडमी बैकग्राउंड. My father had been a lecturer. तो जो एक टीचर के घर में माहौल होता है वही माहौल हमारे घर में था. उन्होंने जिस तरह से प्लान किया था कि मुझे अपने बेटे को पहले एकेडमिक्स में सक्सेसफुल बनाना है, उसके बाद एक अच्छा प्रोफेशनल बनाना है, उसके बाद आगे का फिर प्लान होगा. तो उसी तरह से आई वॉज टॉपर ऑफ द स्टेट इन मैट्रिक. दैट वॉज फर्स्ट टाइम जब किसी ने सुना, इवन मैंने भी फर्स्ट टाइम मैंने सुना कि
10th क्लास में इंग्लिश मैथ साइंस तीनों में 100/100 मार्क्स आ गए मेरे. Then I was selected for CPYLS program that was for the youth leadership in sciences by the CSIR, Council for Scientific and Industrial Research, Institute of Microbial Technologies in Chandigarh. I was invited. Then I got to meet Dr. Craig Venter, who had worked on genome. That was very encouraging and enriching for me. I was quite motivated to become a scientist. और 10th क्लास का एक बच्चा तो ये सोच रहा था कि मुझे साइंटिस्ट बनना है. अल्टीमेटली इट टुक मी टू द मेडिकल स्ट्रीम इन +1 +2. देन क्लियर्ड दिस एग्जाम्स एंड उसके बाद में हम डेंटिस्ट्री में आ गए. देन same continued in 12th also. I was topper in the district. I was topper in the medical stream in the state. In college also. It was good. It was, everything was good. First time I'm sharing it with anybody जो अभी मैं incident narrate करूँगा. I generally don't talk about it. Oral, I wanted to be an oral and maxillofacial surgeon. That was my favorite subject. जब भी शायद एग्जाम हुआ होगा, I don't think कि कभी मेरे अगर 15 का है, 20 का है, 50 का है, I didn't, कभी उसमें से 100 में 100% से कम मार्क्स नहीं आए. फाइनल ईयर का एग्जाम हुआ. फाइनल ईयर में हमारा सब्जेक्ट था. फाइनल ईयर का एग्जाम हुआ. इट वेंट टू वेल. रिजल्ट आया 28 जून 2016 में. एंड टू माई सरप्राइज आई फेल्ड इन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी. That was my favorite, top of favorite subject. I wanted to do the post graduation in that subject, and then I had planned everything. I'll do this course and that course. I'll become a plastic surgeon and all. पेरेंट्स भी और मैं भी कॉन्फिडेंट था कि भैया रिटर्न में तो तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता, ये तो संभव ही नहीं है. एंड दैट वाज ट्रू ऑल्सो. जब मैं, इट वाज वेरी शॉकिंग. ऑन द स्पॉट आई वाज नम कंप्लीटली. और I went to find out the status in the university in Faridkot in Punjab. Then I got to know that I have scored 82 marks out of 100 in written, and I have scored 35 out of 100 in practicals. It was shocking. The person जिससे मैंने पूछा कि कितने मार्क्स हैं जो क्लरिकल उस पर थे यूनिवर्सिटी में, he told कि भाई तुम्हारी टीचर से कोई पंगा है क्या? तो आई वाज लाइक नहीं यार, पंगा तो मेरा किसी से भी नहीं आया. वेरी रिस्पेक्टफुल. ही वाज लाइक कि भाई तुम्हारे तो, उसने मार्क्स देखे रिटर्न में हर सब्जेक्ट में. इस तरह से किसी एक आध में हो तो बंदा एक्सेप्शनल होता है, बट हर किसी में 100 में से 80, 82, 85 इस तरह से. उसके बाद धीरे धीरे एक्सप्लोर किया तो जो एग्जामिनर थे, दे फॉरगॉट टू ऐड 45 मार्क्स ऑफ माय वाइवा. They forgot to add. Otherwise, I had scored 80 out of 100 in practicals also. That was very shocking. एक पढ़ने वाला बच्चा जो कभी जिंदगी में फेल होना तो दूर, कभी थर्ड से नीचे कभी सोचा नहीं है, उसके साथ ऐसा हो जाए. That was very shocking. That was the turning point of my life. 6 महीने की बैक होगी. हमारे जो डेंटिस्ट्री में या मेडिकल में अगर एक सब्जेक्ट में थर्ड ईयर तक सप्लीमेंट्री आती है तो उसमें बैक नहीं लगती, बट फाइनल ईयर में अगर एक भी सब्जेक्ट में आती है तो उसमें 6 महीने की बैक लगती है. That was very 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 shocking for me. For 6 months जो मैंने स्पेंड किए. और that was a turning point when I thought I have to leave this field. I have to get into the civil services. हर कोई मुझसे पूछता है क्यों सिविल सर्विस. I don't tell anybody. आज पहली बार मैं बता रहा हूँ कि why I am into the civil services. This is why I am into the civil services, क्योंकि हमारे सिस्टम में रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है. चीज़ें उतनी सही नहीं हैं जितनी होनी चाहिए. जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके लिए बहुत शौक है. And it is why I know what injustice is. That is why I try कि मेरे कलम से कभी किसी के साथ injustice ना हो. This is why I try.